Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 10th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's your lecture 10 and first a brief recap as usual of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about integers modulo n, and then we further talked about modulo groups. Okay, so what are integers modulo n? And then once we have defined integers modulo n, we can actually get some new groups which we call modulo groups. Okay, so I started talking about integers modulo n in lecture 8 and then continued on in lecture 9, and I'm sure you will be very familiar with the concept now, and you will also be reasonably familiar with the concept of modulo groups now. Okay, just a brief recap of integers modulo n. So here is what we had. Okay, so in a very elementary definition we said, okay, so what are integers modulo n? So you need to divide the integers, the set of integers, by n, right? So all possible integers with a positive number n, let's say 2, 3, 4, 5, 6. Okay, once you divide all integers by n, what you have to do is you just need to write down or record the remainders. Okay, so for example, you divide the integer by 1 by 2, so you divide 1 by 2, you get a remainder of 1, right? So you divide 2 by 2, you get remainder of 0, right? Similarly, you divide 0 by 2, it's you also get remainder of 0. Okay, so in the set integers modulo 2, you have two numbers, naught and 1. Okay, then we said a little bit more about those numbers and define addition and multiplication on it. So let's have a look at it again. So this is the formal definition of integers modulo n. Okay, so integers modulo n में हम क्या करते हैं? हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है n जो हमने फिक्स किया हुआ, राइट? सो n है हमारे पास जो कि एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, पहले से हमने डिसाइड किया हुआ, राइट? सो फिक्स से मुराद ये है यहाँ पे कि हमने इसको पहले से डिसाइड किया हुआ है कि ये कौन सा पॉजिटिव नंबर है, तो इट्स अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मॉडुलो n की बात हो रही है, और हम ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है z, इसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? रिलेशन ऐसे डिफाइन हो रहा है, हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट्स दो हैं a और b इंटीजर्स के, वो दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। a इज रिलेटेड टू b, ये टिल्डा जो है इसका मतलब है रिलेटेड टू। ओके, सो टिल्डा का मतलब है रिलेटेड टू। ओके, राइट, सो टिल्डा का मतलब है कि a इज रिलेटेड टू b if and only if n divides b minus a. ओके, सो हम ये कहेंगे कि a और b आपस में रिलेटेड हैं अगर n जो है, जो हमने पहले से फिक्स किया हुआ है, वो b माइनस a को डिवाइड करता है। जैसे अगर आप n लें 2, तो आपके पास ये हो जाएगा कि आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोई से दो इंटीजर्स, लेट्स से 3 और 5 या 3 और 4 आपस में रिलेटेड हैं या नहीं। तो 3 और 4 आपस में रिलेटेड होंगे अगर 2 4 माइनस 3 को डिवाइड करे, यानी अगर मैं a को 3 लूं और b को मैं लूं 4, तो 3 और 4 आपस में रिलेटेड होंगे अगर n जो है वो 4 माइनस 3 को डिवाइड करे। सो इफ 2 divides 4 minus 3, right, so this implies if 2 divides 1, then they will be related to each other. Okay, so हम ये कहेंगे कि दो नंबर्स
आपस में रिलेटेड हैं अगर n जो है वो b माइनस a को डिवाइड करे। अब 2 क्लियरली 1 को डिवाइड नहीं करता, राइट, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, सो ये ट्रू नहीं है, सो 2 डजंट डिवाइड 1, सो 3 और 4 रिलेटेड नहीं है आपस में, राइट। लेकिन आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी, जैसे 4 और 6 आपस में रिलेटेड हैं, 3 और 5 आपस में रिलेटेड हैं, इसी तरह बहुत सारे नंबर्स आप लेंगे तो वो आपस में रिलेटेड होंगे। अगर n मॉडुलो 2 लेंगे, इंटीजर्स मॉडुलो 2 लेंगे, सॉरी, तो हमारे पास हम ये शो कर सकते हैं कि 0 से रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो हैं 2, 4 और हमारे पास है 6 और 8। ये सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव्स, ये सारे 0 से रिलेटेड हैं इस रिलेशन के तहत। इसी तरह आप ये भी शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो 1 है, नंबर 1 है, उससे रिलेटेड जो हैं ये सारे नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9, ओके। सो ये सारे नंबर जो हैं ये नंबर 1 से रिलेटेड हैं। इसी तरह इनके पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, ये सारे के सारे 1 से रिलेटेड हैं, ओके। सो ये हमारे पास 0 से रिलेटेड सारे नंबर्स आ गए और 1 से रिलेटेड सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये प्रूव भी किया था कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसके अंडर हम इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं, राइट। सो वो रिलेशन हमारे जो सेट है Z के ऊपर हमने डिफाइन किया रिलेशन, तो अगर Z के ऊपर हमारे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो वो रिलेशन हमारे सेट को क्लासेस में डिवाइड कर देता है, स्मॉलर सेट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये जो 2 क्लासेस हैं, 0 से रिलेटेड हो गए सारे इवन नंबर्स, 1 से रिलेटेड हो गए सारे ऑड नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। जो इंटीजर्स का सेट है उसमें 2 ही तरह के नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इवन नंबर्स और पॉजिटिव नेगेटिव ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन लूं, वो सारे एलिमेंट्स जो 0 से रिलेटेड हैं और वो सारे एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूं तो मेरे पास जो Z है वो वापस आ जाता है। इसका मतलब है मैंने Z को इस रिलेशन को यूज करते हुए 2 सेट्स में डिवाइड कर लिया, 2 स्मॉलर सेट्स में डिवाइड कर लिया, राइट। सो मेरा सेट जो Z है वो 2 इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड हो गया। तो ये रिलेशन के तहत ये जो 0 से रिलेटेड सारे नंबर्स हैं उनको मैं एक सेट में लिखूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ये इक्विवेलेंस क्लास है एक, राइट। सो इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ओके। और इसी तरह 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाऊंगा तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स रखूंगा जो 1 से रिलेटेड हैं, ओके। सो वो सारे एलिमेंट्स जो 1 से इक्विवेलेंट हैं, इफ यू लाइक, ओके, राइट। जो लास्ट रिलेशन हमने लास्ट स्लाइड पे डिफाइन किया, वो रिलेशन जो है वो एक्चुअली एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब मैं कहता हूँ कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n, so this basically means कि n divides B minus A, okay? So n divides B minus A. So जो रिलेशन हमने डिफाइन किया, हमने कहा कि A is related to B if and only if n divides B minus A. So congruence रिलेशन और वो रिलेशन एक्चुअली सेम है, दोनों रिलेशन सेम है। तो ये रिलेशन नंबर थ्योरी में बहुत यूज होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस में इसकी एप्लीकेशंस हैं, राइट। अब लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आप इसको बोलना चाहें या मॉडुलो रिलेशन बोलना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, ये रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं ये हमारे जो सेट्स हैं जिनके ऊपर हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं उसको स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, जो इनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। अब हमने ये देखा कि अगर Z हमारे पास हो और N हमारा 2 हो तो हमारे पास अगर 2 नंबर्स में लूं तो 0 बार अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करना चाहूं तो यहां पे मैंने ये कहा है कि A कोई भी नंबर होगा उसकी इक्विवेलेंस क्लास ये होगी कि A
और उसमें इंटीजर्स टाइम n मैंने ऐड करते जाना है। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। तो जैसे 0 के जो रिलेटेड नंबर्स हैं वो 0 हो सकता है, फिर 0 प्लस n हमारे पास 2 है तो 2 टाइम्स 1, और इसी तरह 0 प्लस 2 टाइम्स 2 और 0 प्लस 2 टाइम्स 3, और इसी तरह बाकी नंबर्स भी इसमें आएंगे। इसके अलावा आप नेगेटिव नंबर्स को ना भूलिएगा, नेगेटिव नंबर्स भी इसी में मौजूद हैं। जैसे 0 प्लस 2 टाइम्स -1, हमने कहा है कोई भी इंटीजर हो सकता है k, राइट। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो मैं -1 भी ले सकता हूँ। इसी तरह 0 प्लस 2 टाइम्स -2 और 0 प्लस 2 टाइम्स -3, और इसी तरह सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो ये सारे के सारे 0 की इक्विवेलेंस क्लास में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर 0 से रिलेटेड हैं। ये सारे नंबर्स 0 के इक्विवेलेंट हैं, इफ यू लाइक, राइट। अब इसी तरह अगर मैं नंबर लूं 1, तो 1 बार जो है वो है 1, और 1 प्लस 2 टाइम्स 1, और 1 प्लस 2 टाइम्स 2, और 1 प्लस 2 टाइम्स 3, और इसी तरह नेगेटिव नंबर्स 1 प्लस 2 टाइम्स -1, और फिर 1 प्लस 2 टाइम्स -2, और 1 प्लस 2 टाइम्स -3, और इसी तरह बाकी नंबर्स, राइट। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्विवेलेंस क्लास में मेरे पास आ रहे हैं 0 और 2 और 4 और 6, सो ऑन, इसी तरह -2 -4 -6, सो ऑन, राइट। और इस क्लास में आ रहे हैं मेरे पास 0, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सॉरी 0 नहीं आ रहा इस क्लास में, तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। 0 इस क्लास में नहीं है, राइट। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1 और +1 भी और -1 भी, राइट। इसी तरह +-3 +-5 +-7 टू सो ऑन, सारे नंबर्स, राइट। तो आपने ये देख लिया है कि 0 बार में मेरे पास सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसी तरह मेरे पास 1 बार में सारे के सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लें, 0 बार यूनियन 1 बार, तो आपके पास सारे के इंटीजर्स आ जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने डिफाइन किया इंटीजर्स के सेट के ऊपर, उसने मेरा जो इंटीजर्स का सेट था उसको 2 स्मॉलर सेट्स में डिवाइड कर दिया, 2 स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये मेन पर्पस होता है इक्विवेलेंस क्लास का, इक्विवेलेंस रिलेशन का, कि हमारे पास जो इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं किसी भी सेट के ऊपर, वो हमारे सेट्स को स्मॉलर क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो सेट है ना Z2 जो सेट है उसके अंदर हम ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस रखेंगे बस, राइट। तो ये Z2 के अंदर 0 बार और 1 बार 2 एलिमेंट्स है। इसी तरह Z3 अगर आपकी बात करेंगे तो उसके अंदर 0 बार 1 बार और 2 बार 3 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, सो आपको मैंने कहा कि Zn तो हमने डिफाइन कर लिया कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, राइट। सो Zn के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार अप टू सो ऑन n-1 बार। इन बार का मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये नंबर्स नहीं है। 0 बार एक इक्विवेलेंस क्लास है, 0 जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास लें, 1 की इक्विवेलेंस क्लास लें, 2 की इक्विवेलेंस क्लास लें, तो जब आप Zn डिफाइन करेंगे तो Zn जो है वो आपके जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट है, राइट। अच्छा, अब इस सेट जो Zn मैंने लिया है इसके ऊपर अगर मैं इसको मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं 2 बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ इस सेट के ऊपर।
पहला बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ एडिशन का, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का, राइट। इसकी मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, एग्जांपल्स बताई थी बहुत सारी। अब नोटेशन में मैं ये कहूंगा लेटर ऑन कि Zn, ये जब हम बार लिखते हैं ये हम फिर बाद में नहीं लिखा करेंगे, हम इसको जस्ट ये सेट कह दिया करेंगे, राइट। जबकि ये अंडरस्टूड है कि ये जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n-1, ये जस्ट एक एलिमेंट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, राइट। सो ये एक एलिमेंट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। लेकिन हम जो टाइपिंग कुछ बचाने के लिए और कुछ कैलकुलेशन में कम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करने के लिए हम जस्ट इनको एलिमेंट्स के तौर पे ही लिख दिया करेंगे, राइट। ओके, सो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल करके बताई Z2 की, और हमने ये देखा कि Z2 जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है, लेकिन जीरो एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो Z2 के हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाते हैं। फिर हमने Z3 की बात की, Z3 अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाता है, Z3 अंडर मल्टीप्लिकेशन अगेन ग्रुप बनाता है, लेकिन जीरो एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा Z2 स्टार या Z3 स्टार, अगर आप उसको कहना चाहें, तो वो एलिमेंट्स जो मतलब जीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी एक ग्रुप बनाएंगे। तो एडिशन के अंदर भी ग्रुप बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। अब हम Z4 की बात कर लेते हैं। Z4 क्या है? Z4 में आपके कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? Z4 में आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 आएगा, आप अगर बार लगाना चाहें 1 बार, 2 बार और 3 बार, राइट। तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे Z4 में। अगर आप इसको अपनी जो डेफिनेशन है उसमें भी देखना चाहें, जो एलिमेंट्री डेफिनेशन थी कि Z4 जो अगर आप लेंगे, तो अगर आप इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ही पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, इसके अलावा कोई भी आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा, राइट। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं Z4 के अंदर। ओके, तो आपने एडिशन डिफाइन की हुई है ऑलरेडी, Zn के ऊपर, Z4 के ऊपर भी वही एडिशन वैलिड है। तो अगर एडिशन की आप एग्जांपल देखना चाहें, 0 बार प्लस 3 बार, ये आपके पास होगा 2 प्लस 3 होल बार। अब 2 प्लस 3 5 है, तो 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। तो आपने एडिशन डिफाइन किया। एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है Zn के ऊपर, ओके। तो जब भी दो एलिमेंट्स आप Zn के ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट भी Zn में ही आएगा, राइट। तो एडिशन जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है Zn के ऊपर, तो Z4 के ऊपर भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हमारे पास सेट भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, हमने 3 कंडीशन चेक करनी है। आपको मैंने ये बताया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन Zn, ओके। ये आप अज्यूम कर सकते हैं, इस सेट के लिए प्रूव भी कर सकते हैं। थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपने 3 एलिमेंट्स कोई से लेने हैं, उनका डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करना है, आपके पास जो आंसर सेम आना चाहिए। एक एग्जांपल अगर आपको मैं करके दिखाऊं तो 1 बार, 2 बार प्लस 3 बार, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1 बार प्लस 2 बार प्लस 3 बार, राइट। इस साइड को अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस 3 बार, सो दैट्स 2 प्लस 3 होल बार, 5, सो दैट्स 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बार प्लस 1 बार, राइट, 1 बार प्लस 1 बार। तो 1 बार प्लस 1 बार जो है हमारे पास वो क्या होगा, 1 प्लस 1 होल बार, तो ये 2 बार ही आ जाएगा, राइट। अब इस साइड को देखें आप अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 2 होल बार, राइट, सो 3 बार। और 3 प्लस 3 होल बार जो 3 प्लस 3 बार जो है वो 3 प्लस 3 होल बार आ जाएगा। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये दोनों आपके पास इक्वल है, तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, राइट। आप इसको दोबारा भी बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, राइट। अब हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए इस सेट के अंदर। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, 0 बार is the identity element. In Z4,
राइट। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट आपने बात करनी है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं होगा तो ये सेट जो है ये हमारे पास एक ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। सो इस सेट के एलिमेंट्स का अगर आप इन्वर्स फाइंड करना चाहें, 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स जो है वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि दोनों को आपस में ऐड करें तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। तो 1 का इन्वर्स जो है वो 3 है, 2 अपना खुद ही इन्वर्स है। अगर आप चेक करना चाहें तो 1 यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 1 बार प्लस 3 बार ये जो है 1 प्लस 3 होल बार के इक्वल है, ये 4 बार है और 4 बार जो है वो 0 के इक्वल, राइट। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो उनका आंसर 0 आया, 0 बार, राइट। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब है 3 1 का इन्वर्स होगा और 1 3 का इन्वर्स होगा, राइट। और 2 अपना खुद ही इन्वर्स है, 2 प्लस 2 बार इज 0, राइट। ओके, सो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है Z4 के अंदर, एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है Z4 के अंदर और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, इसलिए Z4 जो है वो एक ग्रुप बनाएगा, राइट। अब ये होगी एडिशन की बात। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करना चाहें इसमें, तो क्या Z4 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है? इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर Z4 की हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, Z4 है, राइट, और इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने देखना है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है, आपको पता ही है कि हम मल्टीप्लिकेशन इस सेट के ऊपर या Zn के ऊपर डिफाइन करते हैं कि 2 बार टाइम्स 3 बार लेट्स से इज 2 टाइम्स 3 होल बार, सो दैट्स 6 बार, सो दैट्स 2, राइट। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, ओके, राइट। अब हमारे पास हमने ये चेक करना है कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं। वेल क्लियरली इस सेट के अंदर 0 आ रहा है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये सेट जो है ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो हम क्या किस सेट की बेसिकली बात करें, हम इस सेट की बात करें Z4 स्टार की, मतलब वो एलिमेंट्स Z4 के जो 0 के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स Z4 के। तो Z4 स्टार में आपको अब आइडिया है कि ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो ये 3 एलिमेंट्स Z4 स्टार में मौजूद हैं। अच्छा, अब इसको मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये एक ग्रुप बनाता है या नहीं। अब इसको अगर ये ग्रुप बनाता है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, इसके अंदर हर एलिमेंट का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें मौजूद होना चाहिए, राइट। अब Z4 जो है इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की हुई है, मल्टीप्लिकेशन Zn के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, ओके, Zn के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बनाती है, ओके। सो हमने अब ये चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ट्रू है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन Zn, राइट। सो इट डजंट मैटर, राइट, ये हमें पता है कि ये होल्ड करता है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 बार जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा। वो कैसे बनेगा कि आप किसी भी एलिमेंट को 1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, राइट। तो 2 टाइम्स 1 सो दैट्स 2 बार आपके पास वापस आ गया, 3 टाइम्स 1 सो 3 बार आपके पास वापस आ गया। तो 1 बार जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इस सेट के अंदर, राइट। अब हर एलिमेंट का इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी चाहिए, राइट। अब हर एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो 1 से स्टार्ट करते हैं,
वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो खुद ही अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी, राइट। सो 1 बार इज इनवर्स ऑफ 1 बार। अब 2 का इनवर्स फाइंड करना है। 2 के साथ मैं कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐड मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 1 आए जब हम उसको मॉडुलो 4 करें। तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 बार आता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, राइट। अब मैं 2 के साथ 2 को खुद मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, ये 4 बार है, मेरे पास 0 आ जाता है, ये भी 1 के इक्वल नहीं है। अब मेरे पास जो है 3 बार है, उसको अगर मैं 2 को 3 बार से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है 6 बार, और ये 2 बार के इक्वल है, ये भी 1 नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें 2 का इन्वर्स मौजूद ही नहीं है। हम क्या ले सकते थे, 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, या 3 ले सकते थे, इसके अलावा तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये जो सेट है, ये हमारे पास इसके अंदर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 2 बार डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके। अब आपने एक और प्रॉब्लम शायद नोटिस की हो कि हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स किए 2 बार टाइम्स 2 बार, सो हमारे पास आ गया 4 बार, राइट। 4 बार जो है वो एक्चुअली 0 के इक्वल है, तो इस सेट के अंदर तो 0 मौजूद ही नहीं है, ओके। इस सेट के अंदर 0 मौजूद नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड ही नहीं है, एग्री। ये सेट जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्लोज नहीं है। तो अगर ये सेट हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज ही नहीं है तो इसको तो ग्रुप हम बनाने का हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे पास ये भी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर 2 बार जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। ये सेट जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। अब इसके अलावा अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दें तो हमारे पास अभी तक ये आया है कि Z2 की बात की हमने, Z3 की बात की, Z4 की बात की। Z2 जो है वो ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है, नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स होना चाहिए, राइट। हमारे पास Z3 जो है वो अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है, अगेन नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो है इन्वर्स उसमें मौजूद होना चाहिए, राइट। इसी तरह अब हमने Z4 की बात की। Z4 अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाता है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाता। इसमें एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज ही नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का इन्वर्स मौजूद नहीं है, राइट। तो अब इसी डिस्कशन को हम जनरलाइज कर देते हैं। Zn की अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो Zn के ऊपर अगर मैं एडिशन डिफाइन करूं जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, तो इस सेट के सबसे पहले तो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, राइट। अब इस सेट के ऊपर हमने एडिशन जो डिफाइन की हुई है उसी को मैं यूज करूंगा, और इस सेट के ऊपर जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, ये भी हमें पता है। तो इसलिए इस सेट के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास 3 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए अगर ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। वो 3 कंडीशंस क्या हैं कि मेरे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, सेट में एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो अब एसोसिएटिव लॉ आपके पास इस सेट में होल्ड करता है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं,
और ये ट्रू है। आप इसको चेक कर सकते हैं स्मॉलर सेट्स के लिए तो बहुत इजी है। ला होल्स इन Zn, राइट। अब अगर हम सेकंड इसमें बात करें तो मेरे पास इस सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी है जो है वो 0 बार इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही। अब अगर हमने इसके अंदर हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स की बात करनी है तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वेल, हमारे पास 0 का जो है इनवर्स वो 0 ही है। 1 का इनवर्स अगर आप लेना चाहें तो वो क्या लेंगे आप? तो ये मतलब आप चेक कर सकते हैं कि 1 बार का जो इनवर्स है वो है n-1 बार। n-1 बार को 1 में अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + n-1 होल बार, तो ये आपके पास आ जाएगा n बार, सो ये आपके पास 0 आ जाएगा, राइट। इसी तरह ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स of all other elements of Zn। तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है और एडिटिव इनवर्स भी हर एलिमेंट का मौजूद है। तो ये सेट आपके पास जो है ये एक ग्रुप बनाएगा, राइट। अंडर एडिशन बात हो रही है, अंडर एडिशन ये आपके पास एक ग्रुप बनाएगा। अब अगेन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ z के लिए ये ग्रुप बनाएगा, कुछ n के लिए और कुछ के लिए नहीं बनाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल Z4 जो है n=4 के लिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा, तो n=2 के लिए, n=3 के लिए ये ग्रुप बना रहा है, n=4 के लिए नहीं बनाएगा, n=5 के लिए भी ये आप चेक कर सकते हैं ये ग्रुप बनाएगा। तो अगर मैं इसको आपको ब्रीफली बता दूं तो Z5 जो है वो हमारे पास है 0, 1, 2, 3 और 4। हमने देखा होगा कि अब हमने बार्स नहीं लगाई। अब हमारे पास ये सेट जो है ये इटसेल्फ तो ग्रुप नहीं बनाएगा, लेकिन हमने ये करना है कि हमारे पास इस सेट के अंदर हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि जीरो एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट कभी करेगा ही नहीं, राइट। तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स हमें मिल जाए तो हम सेट को कह देंगे ये ग्रुप है। तो बेसिकली हम नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जीरो एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। क्या ये सेट क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन? जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का सबसे पहले हमें चेक करना होगा वो है 1, 2, 3, 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आंसर आएगा, इसी सेट में मौजूद है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 3 से 4 से, आंसर वही आएगा, तो इसी एलिमेंट में, इसी सेट में मौजूद है। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट्स 4 भी इसी सेट में मौजूद है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आंसर आएगा। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, इस सेट में मौजूद है, राइट। तो 2 को 4 से डिवाइड करूं तो 8 और 5 के अंडर रिमाइंडर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा, तो इसी सेट में मौजूद है। इसी तरह 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 9, और जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। अगेन मल्टीप्लिकेशन इसी सेट में मौजूद है। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, राइट। तो इसी सेट में मौजूद है। फाइनली 4 को 4 से डिवाइड करूं तो 16 और रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। तो Z5 स्टार जो है वो उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड है, राइट। तो ये सेट जो है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इनवर्स की कंडीशन अगर आप चेक करना चाहें तो आपके पास ये आ जाएगा 2 जो है वो 3 का इनवर्स है, 1 अपना खुद ही इनवर्स है, 4 जो है वो 4 का इनवर्स, राइट। ओके, सो 5 भी होगा, n=6 नहीं होगा, n=7 भी होगा, n=8 नहीं होगा, n=9 भी नहीं होगा, n=10 भी नहीं होगा,
n इज इक्वल टू 11 होगा, n इज इक्वल टू 12 नहीं होगा, n इज इक्वल टू 13 होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ सेट्स जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हैं और बहुत सारे नहीं बना रहे। जो बना रहे हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो वो बहुत स्पेशल नंबर्स हैं, राइट। ये कौन से नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी, 11 भी, 13 भी। इसके अलावा भी जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे इन सब के लिए ये जो सेट है Zn ऑफ कोर्स स्टार, ये आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा। तो इस सेट को हम कहेंगे, ये सेट हमारे पास Zp है। तो Zp क्या है? यहां पे p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, तो Zp मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एक प्राइम नंबर के इक्वल होंगे। जैसे आपके पास Z2 हो सकता है, Z3 हो सकता है, Z4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, Z5 हो सकता है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, इसी तरह Z6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, Z7 हो सकता है और इसी तरह बाकी सारे प्राइम नंबर्स के लिए। तो हमें ये तो इजीली पता है कि Zp जो है अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, ठीक है। अब एडिशन में मॉड्यूलर एडिशन की बात कर रहा हूं, इस सेट के ऊपर जो मैंने एडिशन डिफाइन की हुई है, राइट। ओके, Zp अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाएगा। ओके, सो Zp जो है वो Zn का सबसेट होगा, राइट। एग्री? Zp जो है वो Zn का सबसेट होगा। मैं ऑफ कोर्स यहां पे मैं ले रहा हूं कि p जो है वो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा n के, राइट। तो अगर स्मॉलर होगा या इक्वल होगा n के, फॉर एग्जांपल Z2 जो है वो Z3 का सबसेट है, इसी तरह Z4 का सबसेट है, Z5 का सबसेट है, इसी तरह Zp जो है वो इन जनरल Zn का सबसेट है जब भी p जो है वो स्मॉलर हो या इक्वल हो n के, राइट। सो ये एक्चुअली एक सब ग्रुप भी है Zn का अंडर एडिशन, लेकिन p जो है वो n से स्मॉलर होना चाहिए या बिगर होना चाहिए, राइट। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या बात होगी? मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि Zp स्टार अगर मैं इसको कह दूं अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ओके। तो हमारे पास ये वेल नोन रिजल्ट है कि Zn इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन if and only if n is a prime number, ओके। Zn जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप बनाएगा अगर n एक प्राइम नंबर है, राइट। सो इसी तरह रिवर्स भी ट्रू है कि अगर n एक प्राइम नंबर होगा तो Zn हमेशा एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप बनाएगा। तो ये आपके पास आपको एक बहुत इफ एंड ओनली बहुत प्रिसाइज कंडीशन मिल गई है कि Zn कब मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप बनेगा? जब n एक प्राइम नंबर होगा, राइट। जब n एक प्राइम नंबर होगा, ओके। सो Z2 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। जब भी मैं Z2 अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं तो जीरो नहीं ले रहा मैं, जीरो अगर लूंगा तो ये कभी भी एक ग्रुप नहीं बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। सो हमारे पास ये हम यहाँ पे इसको डिस्कशन को इसकी क्लोज करते हैं मॉड्यूलो इंटीजर्स की। तो हमारे पास मॉड्यूलो इंटीजर्स हमने डिफाइन कर दिए। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि z सेट के ऊपर हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो इक्विवेलेंस रिलेशन ये है कि दो एलिमेंट्स इंटीजर्स के आपस में रिलेटेड होंगे, लेट्स से a एंड b। सो a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर हो n, राइट।
So n divides b minus a. Okay, so a is related to b if and only if n divides b minus a. Okay, तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया। फिर हमने प्रूव भी किया कि ये रिलेशन एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन कांग्रुएंस रिलेशन भी इसको बोलते हैं। और हमने ये देखा फिर कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो हमारे सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो Zn की आपके पास Z की आ जाती हैं, जो लेट्स से फॉर n इज इक्वल टू 2 हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, 0 की इक्विवेलेंस क्लास और 1 की इक्विवेलेंस क्लास। अब अगर हम लें Z3 तो हमारे पास तीन इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाती हैं, 0 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 की इक्विवेलेंस क्लास और 2 की इक्विवेलेंस क्लास। और इसी तरह हमारे पास Zn की हमारे पास n इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, 0 और 1 और 2 और अप टू सो ऑन n-1। ये आपके पास n इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। इनको एक सेट में रखें, आपके पास एक फाइनाइट सेट आ जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फाइनाइट ग्रुप्स हैं उसकी एग्जांपल्स हमारे पास अभी तक थोड़ी कम है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या फाइनाइट ग्रुप्स की हमारे पास और एग्जांपल हमें मिल सकती हैं। तो उन एग्जांपल्स को देखने के लिए हमने ये सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया। इस सेट को जब हमने कंस्ट्रक्ट किया तो अब अगर हम इसको ग्रुप बनाना चाहते हैं तो अब हमारे पास इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए। फिर इस सेट के ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए दो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन जो है Zn फॉर ऑल n, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, आपके पास एक ग्रुप बनाता है और ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अभी इसी स्लाइड में हम देख रहे हैं कि Zp जो है ना वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। Zp स्टार ऑफ कोर्स 0 एलिमेंट उसमें नहीं होगा। सो Zp स्टार जो है वो हमारे पास ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन जब n प्राइम होगा, राइट। सो या p प्राइम होगा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंडर सारे ग्रुप नहीं बनाते क्योंकि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बनेगा। Z4 के केस में हमने देखा। तो ये Zn जो है ये ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ एंड ओनली इफ ये n एक प्राइम नंबर होगा, राइट। तो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल गई। आप अगर ऑर्डर 1 का ग्रुप लेना चाहते हैं वो भी आपको Zn में मिल जाएगा। ऑर्डर 2 का लेना चाहते हैं Zn में मिल जाएगा। ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 4 का कोई भी फाइनाइट नंबर होगा तो आपके पास उस ऑर्डर का ग्रुप आपको Zn में मिल जाएगा। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स का ग्रुप क्या होगा, आप कहेंगे Z5 तो एक ग्रुप है अंडर एडिशन, 5 एलिमेंट्स है उसमें। आप ये कहना चाहें 100 एलिमेंट्स का क्या ग्रुप होगा, तो आपके पास एक ग्रुप तो कम से कम नोन है, वो क्या है Z100। आप कहेंगे इसमें 100 एलिमेंट्स हैं और ये एडिशन के अंडर हमेशा एक ग्रुप बनाता है, राइट। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ गई फाइनाइट ग्रुप्स की। अब हम ग्रुप्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस कोर्स का, उसके ऊपर हम मूव करेंगे। वो है, मैं आपको लास्ट टाइम भी शायद इसको थोड़ा सा बताया था कि परम्यूटेशन ग्रुप्स के ऊपर हम मूव होंगे। तो नेक्स्ट हम परम्यूटेशन ग्रुप्स को थोड़ा सा आज डिफाइन करते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा लेकिन हम उनको डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम होपफुली उस नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब परम्यूटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप्स की हम बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट हैं इस हेडिंग में। एक ग्रुप है और ग्रुप का आपको ऑलरेडी पता है, परम्यूटेशंस हैं। परम्यूटेशंस भी होपफुली आप फेमिलियर होंगे पहले से कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं। तो परम्यूटेशंस ग्रुप्स, हमने ग्रुप्स बनाने परम्यूटेशंस के, राइट। पहले परम्यूटेशंस की थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि परम्यूटेशंस क्या होती हैं, फिर ग्रुप की तरफ आते हैं कि परम्यूटेशन ग्रुप्स क्या होंगे, राइट। अब हमारे पास एक सेट है, लेट्स से 2 एलिमेंट्स का। अब परम्यूटेशन क्या होती है। परम्यूटेशन बहुत आसान अल्फाज में मैं अगर इसकी बात करूं नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में, तो ये होती है रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स के पेन हैं, राइट। सो एक ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, लेट्स से, राइट। तो आपने इसकी परम्यूटेशंस बनानी है, इसकी रीअरेंजमेंट करनी है। अब हमारे पास पहले वो एक ऑर्डर में पड़े हुए हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन।
अब आपने इसकी परम्यूटेशंस बनानी है। परम्यूटेशंस बनानी है तो ये एक अरेंजमेंट है इसकी, ऑफ कोर्स रेड, ब्लू और ग्रीन। इसके अलावा अगर आप एक अरेंजमेंट होगी रेड, ब्लू और ग्रीन। ये आप कोई 3 पेन्स हैं आपके पास, उनकी आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं, हम इसको एक और ऑर्डर में रख देते हैं, पहले मैं रेड रखूंगा, फिर ग्रीन रखूंगा, फिर ब्लू रखूंगा। पॉसिबल है ना, राइट? अब इसके बाद आप कोई और इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपके ये पहले मैंने ग्रीन रखना है, फिर उसके बाद रेड रखूंगा, फिर उसके बाद ब्लू रखूंगा। फिर इसके बाद आप ये कह सकते हैं लेट्स से पहले जो है वो फिर मैं रेड ही रखूंगा, मैं रेड जो है मैं पहले ही मुझे पसंद है, तो उसके बाद जो है ना वो मैं रख लेता हूँ कोई सा और, लेट्स से रेड, ब्लू, ग्रीन हो गया, रेड, ग्रीन और ब्लू हो गया। अब इसके अलावा तो कोई इसकी अरेंजमेंट फर्स्ट रेड के साथ नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास रेड कवर हो गया। ग्रीन पहले है और उसके बाद रेड है और फिर ब्लू है। लेट्स से ग्रीन की एक और हो सकती है कि ग्रीन के बाद ब्लू आ जाए, फिर उसके बाद रेड आ जाए। अब हमारे पास रेड आपने पहली पोजीशन पे रख लिया, ग्रीन भी रख लिया, लेकिन ब्लू को ये चांस नहीं मिला कि वो पहली पोजीशन पे आए। तो ब्लू अगर आप पहली पोजीशन पे रखें, उसके बाद फिर रेड आ सकता है और ग्रीन आ सकता है। इसी तरह ब्लू अगर हो और उसके बाद आप रख सकते हैं लेट्स से ग्रीन और रेड। ओके, अब ये आपकी अरेंजमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है रेड, ब्लू और ग्रीन के, राइट? इन 3 जो कलर्स हैं या इन 3 कलर्स के जो पेन्स हैं, उनको आप इसी 6 तरीके से, ये 6 वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो आपके पास चीजें पहले से एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, आप उनको रीअरेंज करना चाहते हैं। पहला ऑर्डर तो वही है, एक वो अरेंजमेंट है उसकी। इसके अलावा आप और मजीद उसकी रीअरेंजमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, ये है मतलब इसको रफ वर्ड्स में इसको परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन इज व्हाट? इट्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास चेयर्स हैं घर में या फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है, तो फर्नीचर में आपको आइडिया है कि हमारे यहाँ सेटिंग चेंज करने का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो फर्नीचर एक ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है, अब आप उसका ऑर्डर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से बेड की पोजीशन चेंज करते हैं, तो सोफा की पोजीशन कहीं और कर देते हैं, चेयर्स कहीं और रख देते हैं, तो ये एक रीअरेंजमेंट है आपके फर्नीचर की, राइट? तो ये एक परम्यूटेशन है आपके फर्नीचर की, राइट? आपके पास 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, वो एक ऑर्डर में हैं, अगर वो एक जैसी चेयर्स हैं तो एक को चेयर 1 कह दें, दूसरी को चेयर 2 कह दें। तो अब आपने चेयर 1 को उठा के चेयर 2 की पोजीशन पे रख दिया, चेयर 2 को चेयर 1 की, तो ये आपके पास एक रीअरेंजमेंट है चेयर्स की, राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट को अब हम सेट के ऊपर लेके आते हैं। तो सेट में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं रीअरेंजमेंट करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट्स की, या ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करना चाहता हूँ किसी सेट के एलिमेंट्स की, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? 1 और 2 लिख सकता हूँ, ये एक ऑर्डर है, या 2 और 1 लिख सकता हूँ। इसके अलावा तो कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें मैं इन 2 एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ सेट के, राइट? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है 2 एलिमेंट्स का, उसकी 2 पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं, 2 पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हैं, राइट? तो अगर आपके पास सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसकी 2 पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हैं। अब एक एलिमेंट का जो सेट है वो इजी है, वो आपको पता है उसकी एक ही अरेंजमेंट है। 1 एलिमेंट के सेट की 1 पॉसिबल अरेंजमेंट है। 2 एलिमेंट्स का सेट हो तो उसकी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। अब इसी तरह मेरे पास एक तीसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, राइट? अब इसकी क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगी? इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स ये हो सकती हैं कि मैं 1, 2 और 3 लिख दूं, एक अरेंजमेंट। ये एग्जैक्टली सेम मैं ये एग्जांपल आपको करके देख चुका हूं कि ये 3 कलर्स थे उसमें। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अरेंजमेंट्स के ऊपर। तो इसके बाद वाली अरेंजमेंट लेट्स से आप ये कर देते हैं, ठीक है? फिर आप 2 को फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं, 2 और 1 और 3, फिर 2 और 3 और 1, ओके? फिर आप कहते हैं नहीं 3 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया, तो 3, 1 और 2, और 3, 2 और 1।
आप चेक कर सकते हैं कि इसके अलावा 3 एलिमेंट्स की कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो सकती। इन 3 एलिमेंट्स को आप इन्हीं 3 ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी और ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके पास ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स के सेट की, या ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं 3 एलिमेंट्स के सेट्स की, राइट। तो ये हमारे पास हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं 3 एलिमेंट्स के सेट्स की। फर्स्ट, अगर एक एलिमेंट का सेट हो तो 1, 2 एलिमेंट के सेट हो तो 2, 3 एलिमेंट्स का सेट हो तो 6। अगर आपके पास सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4, अब इसकी आप रीअरेंजमेंट्स बनाना चाहते हैं 1, 2, 3 और 4, फिर आप देखेंगे 1 और 3 और 2 और 4, राइट। सो फिर मैं सारी नहीं लिखूंगा इसकी, लेकिन आप मजीद अगर देखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि 1 और 4 और 3 और 2, और इसके अलावा भी बहुत सारी। तो जो सेट ए है उसकी टोटल परम्यूटेशंस जो हैं वो 24 हैं, ओके। अगर 4 एलिमेंट्स का सेट हो तो उसकी सारी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हैं वो 24 हैं, ओके। सो जो सेट अगर ए है उसके बाद अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो उसकी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हैं वो 24 होंगी, ओके। सो अब एक एलिमेंट के लिए 1, 2 एलिमेंट्स के लिए 2, 3 एलिमेंट्स के लिए 6 और 4 एलिमेंट्स के लिए 24। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा ऑर्डर में लिखूं तो 6 जो है वो एक्चुअली होता है 3 फैक्टोरियल, 24 जो होता है ये 4 फैक्टोरियल होता है। अगर आपके पास सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हों तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास इसकी जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं वो कितनी आएंगी, वो आएंगी 5 फैक्टोरियल, जो आता है इसकी वैल्यू क्या होती है 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, सो 20 एंड 60 एंड 120, राइट। सो अगर आप 5 एलिमेंट्स के सेट लेंगे और उसकी सारी परम्यूटेशंस लिखेंगे तो ये आपके पास 120 परम्यूटेशंस आएंगी, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बहुत मुश्किल है लिखना। लेकिन ये जो 4 एलिमेंट्स का सेट है 24, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एक्सरसाइज है आपके लिए कि राइट डाउन ऑल possible permutations of a set of 4 elements, ओके। तो अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हो, मैंने आपको ये बता दिया कि 24 परम्यूटेशंस आएंगी उसमें, राइट। तो आप ये प्लीज इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब 1 एलिमेंट के सेट में 1 है तो ये 1 फैक्टोरियल भी है, 2 एलिमेंट्स के सेट में 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसकी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हैं वो n फैक्टोरियल होंगी, राइट। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इफ a has n elements then total number of permutations of A are n factorial, okay। परम्यूटेशंस कुछ नहीं होती, परम्यूटेशंस सिर्फ रीअरेंजमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, रीअरेंजमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, इसके अलावा परम्यूटेशंस कुछ नहीं होती। जो आप सेट लें उसके ऑब्जेक्ट्स को हम रीअरेंज करते हैं, वो आपके पास परम्यूटेशंस आ जाती हैं। अब ये जो 3 एलिमेंट्स का मैंने सेट दिया था, इसकी मैंने परम्यूटेशंस लिखी थी 1 2 3 एलिमेंट्स का। अब मेरे पास ओरिजिनल जो परम्यूटेशन है वो ये है कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं सेट के, उनकी जो परम्यूटेशन ली उनको मैंने एज इट इज लिख दिया,
1 को 1 जो है वो 1 ही रहा, 2 ही रहा, 3 रहा। फिर मेरे पास एलिमेंट्स तो वही हैं, लेकिन मैंने एक सेकंड परम्यूटेशन लिखी, उसमें मैंने कहा 2 जो है अब 3 बन गया, 3 की पोजीशन पे आ गया, 3 जो है वो 2 की पोजीशन पे आ गया, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट परम्यूटेशन मैंने क्या की, 1 2 3 मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब मैंने ये कहा कि 1 जो है वो 2 की पोजीशन पे चला गया, 2 जो है वो लेट्स से 1 की पोजीशन पे आ गया, 3 जो है वो 3 अपनी पोजीशन पे ही रहा। फिर मैंने कहा कि 1 जो है वो 2 की पोजीशन पे आ गया, और 2 जो है वो 3 की पोजीशन पे चला गया, और 3 जो है वो 1 की पोजीशन पे आ गया, राइट। तो ये आपके पास एक और परम्यूटेशन आ गई। इसके बाद आपने ये किया कि 1 2 3, और नेक्स्ट परम्यूटेशन आपने क्या ली कि आपने 1 के साथ 3 को इंटरचेंज कर दिया। फिर आपने ये कहा कि 2 को आप लेट्स से 1 के साथ कर दें और 3 को 2 के साथ। फिर आपने फाइनली ये कहा कि 1 2 3 है, तो आपने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 2 और 1, राइट। आपके पास ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उनको आप एलिमेंट्स बना रहे हैं, उसके नई अरेंजमेंट्स फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फॉर्मल करने की कोशिश करूं, तो आपके पास एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, अभी इसी कोर्स में भी देखा है, पहले भी देखा है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि एलिमेंट्स एक सेट से लेता है, उनको किसी दूसरे सेट के ऊपर मैप करता है, राइट। लेकिन हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, वो उसी सेट के एलिमेंट्स लेता है 2 और उसी सेट के ऊपर मैप कर देता है। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक फंक्शन हो किसी सेट A से और उसको उसी सेट A के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर दे, राइट। किसी सेट A से एलिमेंट्स ले और उसी सेट के अंदर उनको मैप कर दे। अब इस तरह का जो सेट होगा, इस तरह का जो सेट होगा या फंक्शन होगा, वो इस सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है? उसी सेट के एलिमेंट्स उसी सेट के ऊपर मैप हो रहे हैं, राइट। उसी सेट के एलिमेंट्स उसी सेट के ऊपर मैप हो रहे हैं। तो बेसिकली कोई ऑर्डर चेंज हो जाएगा सेट का, लेकिन एलिमेंट्स उसके अंदर वही रहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं परम्यूटेशंस में लेके आने की कोशिश करूं, तो ये मेरे पास अगर यहाँ पे एक फंक्शन हो, फंक्शन क्या कर रहा है? इसी सेट के एलिमेंट्स ले रहा है और उसको इसी सेट के ऊपर मैप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को f1 कहूं, तो f1 क्या कर रहा है? 1 को 1 के ऊपर मैप कर रहा है, f1 जो है वो 2 को 2 के ऊपर मैप कर रहा है, f1 जो है वो 3 को 3 के ऊपर मैप कर रहा है। अब अगर मैं ये दूसरी एग्जांपल की बात करूं और यहां पे अगर मैं कोई मैप लूं f2, तो f2 क्या कर रहा है? f2 1 को तो 1 पे मैप कर रहा है, लेकिन 2 को 3 पे मैप कर रहा है, और 3 को 2 पे मैप कर रहा है। इसी तरह अगर आप यहां पे एक मैप लेना चाहें, लेट्स से f3, तो आप देख सकते हैं कि ये किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है। तो इसी तरह ये f4 आप अगर यहाँ पे लेना चाहें, एक f5 यहाँ पे लेना चाहें और एक f6 यहाँ पे लेना चाहें, राइट। तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है कि एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं एक सेट में से, और वो सेट के एलिमेंट्स उसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर मैप हो रहे हैं, राइट। कोई फंक्शन का कॉन्सेप्ट शायद बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा कोई इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि परम्यूटेशंस को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। परम्यूटेशंस एक रीअरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की, श्योर, लेकिन शायद इसका कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी होगा, कोई ग्रुप थ्योरेटिक, कोई फंक्शनल एस्पेक्ट भी होगा, राइट। तो अगर आप किसी भी एक परम्यूटेशन को यहाँ पे देखें, तो बेसिकली क्या कर रही, एक सेट के एलिमेंट्स, जो मेरा सेट A है, उसके एलिमेंट्स को ले रही है
और उस सेट के एलिमेंट्स को उसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर रही है, मतलब उसी सेट के एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट है ना, राइट। तो वो जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स हैं वो भी उसी सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये एक फंक्शन है एक सेट ए से उसी सेट के ऊपर। वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन ये करता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो रिजल्टिंग एलिमेंट्स भी उसी सेट के अंदर आ रहे हैं। तो फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, दो प्रॉपर्टीज ट्रू होनी चाहिए अगर ये फंक्शन है। हर एलिमेंट के लिए उसी सेट में एक और एलिमेंट होना चाहिए, ये ना हो कि वन जो है वो किसी और एलिमेंट के ऊपर मैप ही नहीं हो रहा। आपने रीअरेंजमेंट शुरू की 3 ऑब्जेक्ट से और आपके पास आपने एक नई रीअरेंजमेंट लिखी, उसमें एक ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। ऐसे नहीं होता। रीअरेंजमेंट अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो 3 ऑब्जेक्ट्स की रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो तीनों एलिमेंट्स उस रीअरेंजमेंट में आएंगे। रीअरेंजमेंट है, जस्ट उनको रीअरेंज करना है, उनमें से किसी को स्किप नहीं करना, राइट। ओके, तो आपके पास मतलब हर एलिमेंट के लिए एक और एलिमेंट भी होगा, ओके, और वो एलिमेंट यूनिक भी होगा, राइट। तो अब हमारे पास सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, वो तीनों मैप भी हो रहे हैं। 1 1 पे मैप हो रहा है, लेट्स से 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप। तो 1 2 3 तीनों मैप भी हो रहे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेट ए है जो अब यहाँ पे कोडोमेन है उसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो एलिमेंट यूनिक भी है। इसके अलावा आपने डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट देखा होगा फंक्शंस के लिए कि फंक्शंस जो हैं वो 1 1 और ऑन टू, ये मैंने आपको गालिबन बताया था कॉन्सेप्ट कि 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा अगर उसकी कोडोमेन जो है, कोडोमेन उसकी रेंज के बराबर होगी, राइट। और फंक्शन 1 1 होगा कि जब दो एलिमेंट्स का इमेज सेम हो, लेट्स से, तो उनका प्री इमेज भी सेम हो, ओके। अब ये जो फंक्शंस हमने लास्ट स्लाइड में देखे हैं, ये फंक्शंस f1 f2 f3 और अप टू सो ऑन सारे के सारे, अब कोडोमेन a है, लेकिन फंक्शन जो है f1 उसकी रेंज क्या है 1 2 3, वो भी a है। f2 की रेंज क्या है 1 3 2, a के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। f3 की रेंज क्या है 2 1 3 है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं a के। इसी तरह f4 की क्या रेंज है 2 3 1, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं a के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट, ये सारे के सारे फंक्शंस जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए जो रीअरेंजमेंट से आए हैं वो सब के सब ऑन टू हैं। उन सब की कोडोमेन और रेंज सेम है, रेंज भी a है, कोडोमेन भी a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑन टू हैं। ऑफ कोर्स इसको आप मैथमेटिकल डेफिनेशन से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन फोकस नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शंस हैं जो परम्यूटेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऑन टू फंक्शंस हैं। सिमिलरली आपके पास ये फंक्शंस 1 1 भी हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, ये 1 1 भी हैं। वो कैसे हैं कि अब अगर 1 और 2 का इमेज अगर सेम होगा, किसी भी आप इसमें परम्यूटेशंस में देखें 1 और 2 या 1 और 3 या 2 और 3 का इमेज सेम नहीं है। अगर 1 2 पे मैप हो रहा है तो 2 फिर 2 पे मैप नहीं हो रहा, राइट। अगर 1 2 पे ऑलरेडी मैप हो चुका है तो 2 फिर 2 पे मैप नहीं हो रहा, या 2 या 3 2 पे मैप नहीं हो रहा। तो सब के सब एलिमेंट्स के लिए इमेज जो है वो यूनिक है। और अगर इमेज दो एलिमेंट्स, मतलब किसी भी दो एलिमेंट्स का इमेज अगर डिफरेंट है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, और इमेज सेम है तो एलिमेंट भी वही है। एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है बस। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट इमेज में 1 1 पे मैप हो रहा है तो वो 1 पे ही मैप हो रहा है, इसके अलावा कहीं और नहीं, कोई और एलिमेंट्स उसके ऊपर आके मैप नहीं हो रहा। ये जो फंक्शंस आ रहे हैं परम्यूटेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 1 1 भी हैं और ये ऑन टू भी हैं, ओके। ये फंक्शंस जो परम्यूटेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, ये 1 1 फंक्शंस भी हैं और ये ऑन टू फंक्शंस भी हैं, ओके। 1 1 फंक्शंस भी हैं और ऑन टू फंक्शंस भी हैं। तो ये जो परम्यूटेशंस फंक्शंस हैं, परम्यूटेशन फंक्शंस जो हैं
functions are both 1 1 and onto. राइट अब मेरे पास लेक्चर का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें इसी डेफिनेशन जो मैंने आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट करके बताई है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मल करना चाहूँगा कि ये मैं मतलब क्या मतलब ले रहा हूँ कि परमुटेशन फंक्शंस आर बोथ 1 1 and 2. परमुटेशन क्या होती है मैथमेटिकल टर्म्स में, क्या होती है परमुटेशन? ओके श्योर, ये एक रीअरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकता मैथमेटिकली कि ये एक रीअरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की. इसी को मैं थोड़ा सा फॉर्मल करूंगा और आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन दूंगा कि परम्यूटेशन क्या होती है, और फिर जब हम परम्यूटेशन डिफाइन कर देंगे तो फिर हम उसके ऊपर परम्यूटेशन ग्रुप्स की भी बात करेंगे कि ये परम्यूटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम चलेंगे इंशाल्लाह. तो अब मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए कि आज हमने क्या किया, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे. ओके तो हमारे पास आज हमने इस लेक्चर में क्या किया, हमने मॉडुलो अरिथमेटिक या मॉडुलो ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट जो है उसको कंप्लीट किया कि हमारे पास इंटीजर्स मॉडुलो एन दोबारा आपको मैंने डिफाइन किया क्या होते हैं. फिर हमने ये वंस एंड फॉर ऑल प्रूव कर दिया कि Zn जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है और Zn अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ n जो है वो एक प्राइम नंबर होगा. राइट सो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का जो मॉडुलो है वो उसका कॉन्सेप्ट है. इसके बाद हमारे पास हमने नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस ग्रुप थ्योरी के कोर्स का है वो है परम्यूटेशन ग्रुप्स का. तो परम्यूटेशन ग्रुप्स की हमने बात करना शुरू की और परम्यूटेशंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया कि परम्यूटेशन क्या है. ये कोई ऑब्जेक्ट्स आप लें उसकी रीअरेंजमेंट करने का नाम है. तो रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक परम्यूटेशन है. राइट तो फिर हमने परम्यूटेशन को कुछ फंक्शन से रिलेट करने की कोशिश की कि फंक्शंस और परम्यूटेशंस में आपस में कोई रिलेशन है शायद, जो हमें पता चल रहा था जब हम परम्यूटेशंस को लिख रहे थे. राइट तो हमने ये भी बात की कि कितनी परम्यूटेशंस होती हैं. अगर आपके पास सेट में n एलिमेंट्स हों, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो, तो आप उसकी n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बना सकते हैं. राइट तो आपके पास फॉर एग्जांपल 5 चेयर्स हैं, लेट्स से डिफरेंट चेयर्स हैं, तो उसकी आप 120 पॉसिबल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं. राइट सो मे बी आपको मैंने एग्जांपल दी, आपको एक्सरसाइज दी कि 4 ऑब्जेक्ट्स अगर आप हों तो उनकी सारी की सारी पॉसिबल परम्यूटेशंस फाइंड करें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी परम्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट को बहुत फॉर्मल बनाएंगे और फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं हमारे डिफाइन करेंगे, और फिर उन ग्रुप्स को लेटर ऑन जब हम अपने कोर्स के एंड की तरफ जाएंगे तो उन ग्रुप्स को हम जो परम्यूटेशन ग्रुप्स जिनको कहेंगे उनको बहुत इंपॉर्टेंट उनके बारे में आपको रिजल्ट बताएंगे कि ये परम्यूटेशन ग्रुप्स बहुत क्रूशल हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और ग्रुप थ्योरी का ये करक्स है. राइट सो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. So thank you very much for your time, and I'll see you again in the next lecture.